So the next topic that we have is use of MS Office, that is Word, Microsoft of like Word, PowerPoint, and Excel for the purpose of research. That is the topic that we have. So let me start first with the Word, because Word is the most important when you do research. Use of MS Office in research. Okay, so we have three softwares that we use: MS Word, PowerPoint, and Excel. First, start with Word. So MS Word is a popular word processing software. It is used for writing, reporting. Okay, all the academic research has to be created and formatted in this particular. It has like purpose to write research and reports due to its robust features of formatting, citation, equations, and reviewing documents. That is very important. So I have divided the application into 4 parts: drafting, editing, formatting, and collaborating. Okay, drafting means like creating a research draft, use of auto editing tools, formatting, giving a shape to your report, and collaborating means how do you collaborate with different people on the same topic, how you and your guide will share the documents. That is what we are talking about in collaboration, or how you will share the documents with your co-authors and all those things. That is how is collaborating, how two people can work at the same time on the same document. Okay. So the first is the report writing. So writing is just basically typing tools you will use. So I'm not going in detail of that. This next part is editing. Editing we can do in 2 or 3 or 4 ways. One is track changes. So you people know how to make comments and track the changes into Word file. All of you know that? Yes, ma'am. How do you, yes, you know how to track changes and see edits and comments from others. So if you have a draft and you give it to your guide will make some suggestions and he will write it in comments. And once you take those suggestions, you can approve those, and those changes will be automatically made. And the best part is always, if you go to your guide's version, those changes are always shown over there. So you can always use that. That is very, very important document. When you want to review a document many, many times, the track changes is very important. Compare 2 documents. Okay, you can compare 2 versions of a document, like that was the first version and second version. You can open them together. You can, in the review also, you can go back to the old version and check the old version. So you can always compare 2 versions of document. Spelling and grammar check is an inbuilt tool. It can be automatically done. And Word tool has become very, robust in terms of spelling and grammar check. It is a good tool. Find and replace. So that is also easy. If you want to replace some terms, some definitions, you can always find and replace. That is how the editing is done. Okay, I'll just talk about an editorial tool and then we talk about the other things. You have to there are 3 things that can be done in an editor. That is a spelling mistake, the grammar mistake, and writing style mistake. If you are not forming your sentences, or the style of writing is not proper, it will show a gold dotted line. It will show a double blue line when it is a grammar mistake, and spelling mistake would be single red line. So single red line, you can take the word, get an example, get an option for that, choose a correct word, Google it, whatever, but you can replace the word. So Word always helps you. Please do run the spelling check. Some people, what they do is they stop that feature in the Word. Don't stop it. Please do check your grammar. Please do check your spelling. Very important. It creates a very wrong impression when you have spelling mistakes. Okay. Now the formatting. Formatting is like applying styles. You know about styles? There are different style: normal style, combined style, paragraph style. So you can use those. If you're writing a normal style and in between you only want one small paragraph which has to look like a small separate paragraph, you can use this paragraph font. There are styles applied. If you want, I can show it to you right away in the Word document. Just hold on, I'll open one Word document. If you don't see my screen, just let me know, huh, please. Okay, so here we go. Here you have different styles. You see, normal style,
Okay, you see there are a lot of styles. This style has one more use, which will be talk about in the last part. That is when you have to pull out a table of figures, when that all will be used in your research. When you have to pull out a table of figures, when you have to pull out the table of content, styles are very important. You can set a heading style. Okay, one heading style if you set up. So every heading, if you press that heading one, all the headings will look like. So for example, I want all my headings to be capital. Okay, so what I do is I will write this, change the heading style. Okay, go to option, font format. I want to see all the formattings to be done only in this document or new document, whatever. So I'll change the formatting. Wait. Heading. Why it is not happening? Sorry. What happened? Okay, I have to close this. Sorry. So how the font has to look like? It has to be all capital. So I can make it, once I make it capital, even if you type small, it will all convert to capital. So where is that to do? If you want to make it bold, italics, all your headings should be bold, italics, and underlined. Suppose, okay, I'm not saying it will be, it has to be like that, but it can be applied. It has to apply for, and you can name it as heading 1. So I am naming it as heading 1. So whenever I do add a heading 1, it will all come. Why it is not showing the capital? Just 1 second. Here it will. Heading font. All caps. Yeah, all caps you do. So now it will all convert to caps whenever you put it. Okay, this is your heading 1. See, after one paragraph, I write something. This is the normal style. It comes into normal style. Now, when I again go, I write another paragraph here, and I want to look same as this. Again, I go here, select, and write from here. I'll choose a heading 1. It will, once you do it 2-3 times, it will start coming in your style. This is my style 1. I named it as style 1. So everything will come like that. If I do this and select and say style 1, it will all convert to style 1. So all your headings will look like same. That is called the styling of the document. Okay, I go change my PPT. Okay, so that is called a heading part. Next, coming to the styles. So use headings that I said. Layout options, choose the options like title, slide, section, header, all those things. Themes, there are so many themes, color coordinated themes. You can change the fonts and all those things also. You can change the spacing, you know how to change the line spacing and the word spacing, all those things. The alignment of the text, all this is a part of formatting. Okay, most important is the references. So here I'm going to talk to you about 2-3 kinds of references. One is the references for external data. That is not called referencing. I'm not talking about referencing yet. I'm saying there's a tool called as researcher in your references. Look here. There's a tool called researches. When you click on that tool, it will give you all the options related to your word on the side. For example, I'll go to the same Word document. If I want to type a topic, women empowerment. Okay, that's my word. इसके ऊपर मुझे research करना है. So what I do, select this word, go to references, go to researcher. Okay, and in the side research, it will start here. You put your word here. Close this. Okay, you put your women empowerment word here. Control C, Control V, and put here. Sorry. Control C, Control V. It will start doing the research related to women empowerment here only. So you'll get a lot of articles from where you want to pick up. आपको बाहर निकल के जाने की जरूरत नहीं है. Here only you can do the research related to your topic. Okay, so that is the tool called as research reference researcher in the reference part. Okay, let's go back. So यहाँ पे side में ये open हो जाएगा and you can get the information about something from there.
Next, we will talk about that referencing later on. Next is collaboration. You can collaborate with your co-author, sharing references and citation, collaborate on project documents, communicating with the colleagues. Everybody knows how to use a Google Doc? Excuse me. Everybody knows how to use a Google Doc? No, ma'am. No, ma'am. No, See, ma'am. the way we have this Microsoft Word, okay, this is Microsoft Word, which runs as a separate software. Google has its own Word, Excel, PowerPoint, everything. So go to Google. I'll show you how to do that. Go to Google, और आप अपने उससे भी जा सकते हो, Gmail से भी जा सकते हो. Google Docs, right? Google Docs. Okay. This Google Docs is an online document. आपका Word फाइल को आप यहाँ अपलोड कर सकते हो. Okay. Go to Docs. यहाँ नया डॉक्यूमेंट आ गया, कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा. अब ये जो डॉक्यूमेंट है, सपोज आई टेक दिस रिज्यूमे. ओके, आई मेक अ रिज्यूमे एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू. सो आई विल शेयर इट विद द नेम resume. Okay, save. So I can share it with anybody. I can share it with any email. तो जिस भी email के पास ये जाएगा वो भी इसमें changes कर सकते हैं. It means two of you are working on the same thing. एक ही document में आप कर सकते हो. नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी word file अलग सेव करूंगी, आप अलग सेव करोगे, फिर बैठ के हमको combine करना पड़ेगा. Right now two of us can work on the same document. मैं अपने फाइल में जो चेंजेस करूंगी आपको दिखाई देंगे, आप जो चेंजेस करोगे मुझे दिखाई देंगे. फाइनली इट विल बी वन. आप इसके अंदर अपना डायरेक्टली वर्ड डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है उसको भी अपलोड कर सकते हो और उसको भी स्टार्ट शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. इट विल हैव सेम फॉर्मेट्स एंड फंक्शंस एज योर वर्ड डॉक्यूमेंट. Only thing is it is available online. So you can always collaborate with your friends while you're working on the same document. Otherwise हमें दो word document को हमेशा merge करना पड़ेगा. तो यहाँ merge करने की जरूरत नहीं है. Simultaneously. Same there is a Google Excel. Okay, you can work on the Excel document. That is called Google Sheets. Google Sheet. I'll show you a real sheet. Okay, Google. Same there is a Google Slide. दो लोग एक साथ मिलके PPT बना सकते हैं. दो क्या, any number of people you can have. This is a Google Sheet. Sign in. Okay, same as Excel. आप जो यहाँ पे काम कर रहे हो आप उसको किसी और के साथ शेयर कर सकते हो और that person also can start working at the same time on this sheet. Right? So that is how it is the collaboration between two documents. Are you getting it? Google Docs. Ma'am, how to share it with anybody? शेयर करा ना तो वहाँ ईमेल आईडी आएगा. एक मिनट, मैंने शीट बनाई ना, आपका ईमेल आईडी भेजिए मुझे, बोलिए. एनीबडी से देयर. हेलो, अपना ईमेल आईडी बोलिए. अमृत राह, AMRUT. जस्ट वन सेकेंड. हमारा गूगल डॉक्यूमेंट गूगल में आएगा ना. ओके, ये हो गया. सॉरी. अमृता. अमृत राह, AM RUT हाँ RAH RAH. ओके, @Gmail. @Gmail. सही टाइप कर रही हूँ मैं. Just wait a minute. Yeah, ma'am. ठीक है. ये मैंने यहाँ पे शेयर किया. पहले मुझे इसको नाम देना पड़ेगा. हाय, मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम देती हूँ. हाय, सेव कर दिया, नाम देके. अब किसके साथ शेयर करना है, तो ये आपका ईमेल आईडी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया. ठीक है. और मैं आपको एडिटर भी बना सकती हूँ, नहीं तो खाली मैं व्यूअर बना सकती हूँ. अगर व्यूअर बनाया तो आप उसको डाउनलोड कर पाओगे पर आप उसको चेंजेस नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको एडिटर बना रही हूँ. सेंड. ओके, अब आप वो लिंक को क्लिक करके देखो अपने मोबाइल में या जहां पे भी आपका खुला है. सेम डॉक्यूमेंट आया और आप उसमें कुछ लिखोगे तो वो मुझे दिखाई देगा. यहाँ पे लिखो, इफ यू कैन एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट. Yes, ma'am. Wait. Write something so that we can see that. गूगल डॉक ओपन करूँ क्या उसके लिए? आपको जो लिंक आई होगी, लिंक आई है ना,
मेल पे एक मैसेज Yes, आया, yes, ईमेल yes, आया, yes, yes, इसको क्लिक करो आप। yes. हाँ Open. हाँ हाँ, ओपन करो और अब उसमें टाइप करोगे तो आप आ जाएगा, यहाँ पे दिखाई देगा सबको। Open with WS Office or Chrome. क्रोम। Okay. एनीबडी कैन शेयर देयर ईमेल आईडी जिनका ओपन है अगर गूगल, तो मैं दिखा देती हूँ ताकि। Edit. Use this app. हाँ, ओ माय गॉड, अच्छा ये सब उसमें जा रहा है। ठीक है, वी विल डू दैट, बाद में आपको दिखा दूंगी। उसको खोलोगे तो आ जाएगा वो। वैसे गूगल में जाके आप है ना, गूगल आपका कहीं जीमेल खुला हुआ है? हाँ मैम, ओपन है वो। जीमेल ओपन है ना, तो वहां पे आपको हाँ जीमेल में जाओ, आप राइट में ड्राइव होगा एक, वो 3 9 आइकन्स होते हैं ना, वहां पे आपको ड्राइव ड्राइव दिखेगा। अगर आप ड्राइव खोलोगे तो आपको वहां दिख जाएगा, गूगल ड्राइव में होगा ये डॉक्यूमेंट आपका। देखो आप गूगल में जाओगे, गूगल, तो आपको जीमेल में जब जाओगे आप, तो यहाँ पे 9 डॉट्स दिखेंगे, या गूगल पे भी हाँ जाओगे हाँ। तो ये 9 डॉट्स दिखेंगे। इससे आप ड्राइव में जा सकते हो। ड्राइव कहाँ गया? ये ड्राइव, ड्राइव में जाइए तो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। देखो मेरे को दिख रहा है ये हाय, ऐसे आपको भी दिखेगा हाय, तो फिर आप इसमें टाइप कर सकते हो। Same way you can share Google Sheet, you can share Google Slides, you can share Google Calendar, everything can be shared this way. दिखा मतलब, क्योंकि यस आप मैम, हमको, यस। आप नहीं दिख रहे हो अभी तक हमको। जैसे ही आप ओके जैसे ही आप ना ओपन करोगे, यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा कि अमृता है, मतलब वो दिखाई देगा कि somebody is working here। मैम, नो, नॉट वर्किंग इट। ठीक है, तो कोई और भी हम लास्ट में ट्राई कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी वो गूगल ड्राइव में आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा, 100% दिखेगा। वी तो वर्क डे इन एंड आउट ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सबके साथ शेयर करना पड़ता है ना। गूगल शीट्स आपकी स्प्रेडशीट्स आप शेयर करके रखो, आप अपनी टाइमलाइन बना के अपने गाइड्स के साथ शेयर करके रखो, सो दैट दे नो कि आप क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो। उनको जो कमेंट लिखना है वो उस पर लिख के देंगे। So that is how it has to work in a collaboration. I will explain you in the end. Okay, let's not waste time. Okay, ओके sorry. ओके ओके ओके। Okay, ठीक है. So this is how you are communicating with other people, and this is all about the what. Two important things that I want to show you, which I'll go to another PPT and show you. हाँ, yeah. Automatic table of content. ये आता है आप लोगों को बनाना? नहीं आता होगा मोस्ट लाइकली। आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, यू हैव मेड वन वर्ड फाइल कंप्लीटली, जहां आपके आपके 5 चैप्टर से आपका थीसिस है। ओके, इट विल हैव से 7 चैप्टर्स, ईच चैप्टर्स विल हैव से चैप्टर 1 विल हैव 1.1 1.2 1.3 1.4 1.10 तक। आपका लास्ट में रेफरेंसेस जो दोगे चैप्टर में 1.10 10 तक आ गया। सेकेंड चैप्टर हैज 2.1 2.2 2.8 तक। ओके, देन यू हैव टू मेक अ टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ता है हमें। वो टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे बनाओगे? मैन्युअली एक एक उठा के कॉपी पेस्ट करके, राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. यस। सो व्हाट विल यू डू हियर, आप हर हेडिंग को, जब आप 1.1 बना रहे हो, उनको आप एक हेडिंग दोगे। एक हेडिंग होगी आपकी, हेडिंग 1 होगी आपकी चैप्टर के नाम की, तो वही हेडिंग 1 विल कंटिन्यू फॉर ऑल 5 चैप्टर्स। ओके, हेडिंग 1 हेडिंग 1 हेडिंग 1, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने स्टाइल सिखाई थी ना अभी आपको, हेडिंग 1 यू विल गिव टू द टाइटल ऑफ द चैप्टर, then heading 2 you can give to subtitles 1.1 1.2 1.3. Okay, and then when you go to this table of contents, okay, this is an insert table of content में जाओगे और आप वहां पे लिखोगे शो टेबल ऑफ कंटेंट। फॉर्मेट भी आप दे सकते हो उनको, कैसा चाहिए, लेवल 1 लेवल चाहिए, 2 लेवल, हमारा 3 लेवल भी होता है ना, 1 1.1 1.2 जैसे बुक्स में होता है। डू यू वांट मी टू शो अ बुक एंड शो यू? जस्ट 1 सेकेंड। ये आपकी कोई बुक होती है, ये देखिए इसमें, ये देखो आपका
टेबल ऑफ कंटेंट ये जो होती है ना, इसमें प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है नहीं, मैं देखती हूँ। हाँ, ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट है, राइट। अब ये आपका 1 लेवल यूनिट, फिर 2.1 लेवल 2, और फिर 2.9.1, दिस इज 3 लेवल, राइट। अगर हमें अपने 3 यूनिट्स के चैप्टर में इतना सारा टाइप करना पड़ेगा, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। सो व्हाट वी डू इज वी सेट ये यूनिट 1 सारे चैप्टर्स के एक जैसे, विच वी आर नेमिंग एज हेडिंग 1, वो सब एक जैसे हो जाएंगे। और ये 1.1 1.2 है, इन सबको हम हेडिंग 2 देंगे। अगर आपने पूरी बुक में 1.1 1.2 हेडिंग करके काम किया है, then in the end you can pull out the table of content from your insert. आराम से easily you can pull out your table of content. ये रहा रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें ये आपको कितना लेवल की चाहिए, 1 लेवल की चाहिए, 2 लेवल की चाहिए, एंड देन अ कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट विल कम। ऐसी ऐसी आपकी सारी हेडिंग्स अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स ऐसे भी आ जाएगी, पेज नंबर के साथ हेडिंग 2 कौन से पेज पे, नहीं तो आपको एक एक देखना पड़ेगा। और जब आपके वो पेज नंबर अगर चेंज होंगे रिविजन में, सपोज आई रिमूव 1 पैराग्राफ, तो मेरा पेज नंबर चेंज हो जाता है, तो अगेन दिस विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड। Please either see some videos, because we are running short of time. Please see some video on how to make table of content and use this feature. This is very, very important for helping you in all your research, especially when you're doing a PhD, right? Same way you can do it उसी तरह table of figures, उन सबको एक ही heading रखो figure के लिए। सिर्फ only thing is while making that you have to apply style. If you apply style properly, आपकी टेबल ऑटोमेटिकली अपने आप पुल हो जाएगी। Are you getting my point? गूगल पे जाके थोड़ा वीडियोस देखो, हाउ टू मेक अ टेबल ऑफ कंटेंट, हाउ टू मेक टेबल ऑफ फिगर्स, आपको अपने आप सीख जाएगा। दिस विल सेव योर आवर्स, बहुत सारे घंटे बचा लेगा। नहीं तो एक एक चीज के लिए आपको कॉपी पेस्ट एंड टाइपिंग करना पड़ेगा। सो दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल टूल, टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल ऑफ फिगर्स। एंड क्योंकि हमारी पीएचडी में तो थीसिस के अंदर देयर कैन बी 100 टेबल ऑफ फिगर्स हो सकते हैं, 100 टेबल्स हो सकती हैं। सो सबकी लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, बट थीसिस में आपको डालना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप एक ही स्टाइल फॉलो करेंगे, देन इट विल बी इजी। सो प्रैक्टिस स्टाइल, practice table of content, practice table of figures. That will make your job easy. See, whenever we are using a software, we have to learn how to make our work easy and how not to repeat mistakes. If you're facing something, just type in Google, ये problem आ रहा है मुझे word में. It will help you. It will help you. It will give you solutions, and 99% of your problems will get sorted. I'm pretty sure. Okay. Any other question on Word? Can I move to Excel? Can I move to Excel? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay. Same way, the way I have tried to keep different formats for the PPTs so that you get to see different styles. Use of Excel in research. So basically Excel बहुत important है for your data analysis part. I will do some formulas in detail with you, but not possible to do all, but I will share the documents with you. Okay. Data collection and organization. How do you import data from files database? वो हम सीखते हैं Excel में. You should know कि हम वर्ड में अपना टेबल बना रहे हैं, उसका जो चार्ट बनेगा वो एक्सेल में बनेगा। अगर आपको कुछ ग्राफ और चार्ट है, पर वो एक्सेल और वर्ड आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, और वो आप उठा के वहां पे पेस्ट कर सकते हो। डू यू नो दैट? Yes, ma'am. Yes, good. So it helps you in arranging ranges and tables. It helps you in cleaning your text data. That is the best use of Excel. How do you do the analysis? First is a function. Functions can be hundreds of functions, 400, more than 400 built-in functions, sum, average, count, correlation, regression, mean, mode, median, VLOOKUP, so many functions, count, ये वो बहुत सारे functions हैं. Okay, I will talk about some 10 functions which are very important when you do research. Pivot tables. Pivot table करना आता है? Pivot is like summary. Okay. आपका बहुत बड़ा स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत सारा डेटा है,
आपको उसकी समरी बनानी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल. यू टीच इन स्कूल. ओके, तो यू टीच इन कॉलेज, तो आपके स्टूडेंट्स का डेटा होता है. ओके, स्टूडेंट्स के नेम होंगे, उनका उनका पूरा डेमोग्राफिक डेटा होगा, एज, जेंडर, ये वो. अब आपको उसमें से पूरी लिस्ट है 500 स्टूडेंट्स की, सबके आगे मेल फीमेल लिखा हुआ है. वो 12th साइंस से आया था, कॉमर्स से आया था, आर्ट से आया था, वो सब भी लिखा हुआ है. अब आपको चाहिए कि आउट ऑफ दिस डेटा आई वांट अ टेबल, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने कॉमर्स स्ट्रीम से आए, कितने साइंस, कितने आर्ट्स हैं. Just use the pivot tables. It will give you all that in hardly a minute's time. It will give you the whole summary. That is the use of pivot table. Then the charts. Charts are definitely the best way of representing your data. Always, wherever possible, try to use charts. Visual data is more impactful than your text. So always use the charts. Where क्या हो गया? Sorry. Okay. Ma'am, please put your phone. Hello, please. Okay, so we have different types of charts: bar chart, line chart, bar chart. These are used for a visualization of data. Okay, this is not important. You can again collaborate with people for this data. You can collaborate with your data analyst. You can collaborate with your project manager. The best part of Excel to use when you are doing your research is that it can collaborate with different data analytics softwares like R, SAS, SPSS. It has a seamless integration with those kind of softwares. Then Power BI, which is used for data visualization. All these software, आपका जो data Excel में है, ये सॉफ्टवेयर लाइक आर, एसपीएसएस वहां से रीड कर सकते हैं. आपको शिफ्ट करने की या रीटाइप करने की कोई जरूरत नहीं है. इट कैन बी इजीली एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर. आपको शायद एसपीएसएस और आर पे भी सेशन होगा. सो आस्क देम टू शो यू एन एग्जांपल कि हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल. Okay, so now I'll show you some examples of so uses of Excel with example. See, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया आपने देखा? This is what you have to learn how to do it. मैंने ये मेरी पीपीटी चल रही है यहाँ पे. दिस माय पीपीटी. ओके, यहाँ पे मैंने एक हाइपरलिंक क्रिएट किया. ओके, एंड दिस हाइपरलिंक गोज इनटू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट. मेरी वो शीट वर्ड पे है. अब जो मैं आपको डेटा दिखाने वाली हूँ वो वर्ड पे है. नीचे देखिए वर्ड पे है, पर वो मैंने यहाँ से यहीं पे मैंने क्लिक किया, वो फाइल ऑटोमेटिकली खुल गया. राइट, दैट्स हाउ यू क्रिएट हाइपरलिंक्स इन द पीपीटी. मैंने पीपीटी में हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है वो भी दिखा देती हूँ आपको. Go to PPT. हाँ, यहाँ पे ना I want to, sorry. Okay, so I want to create a hyperlink anywhere. I can write my any word file जिसका मेरे पास एड्रेस होगा. I am not able to write. Okay, external. PDF file. I want to add my PDF file का यहाँ पे फाइल का नाम या कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा. Okay, then select this and go to insert link. Link, आपका डेटा कहाँ पे है? Okay, my data, insert link, my data is in my hard drive. मैं कोई भी डेटा, ये चलो ये PDF यूज कर रही हूँ एक्सेल. ओके ओके, अब मैंने यहाँ दे दिया, ये नाम आ गया इस PDF का. अब मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ उसको खोलूंगी, डायरेक्टली वो फाइल खुल जाएगा मेरा. ये देखो, ये PDF खुल गया. देखा आपने? Yes, ma'am. So moving from one document to another easily. There is no problem in moving from one document to another. That is how we. क्या हुआ? Ma'am, can you repeat it again? I will repeat. देखो मैं सब चीज बंद कर देती हूँ so that it becomes easy for you. मेरी ये पावर पॉइंट की स्लाइड थी, ये वाली ना. हम ये देख रहे थे वर्ड वाली फाइल, नहीं वर्ड नहीं, एक्सेल देख रहे. सॉरी, वर्ड बंद कर दूं मैं. हम ये एक्सेल देख रहे थे. राइट, अब मैंने इसके बाद में मैंने आपको दिखाया था दैट सॉफ्टवेयर, जो क्या नाम था उसका,
हाउ टू ऐड अ टेबल ऑफ कंटेंट, राइट? तो मुझे वो ऐड करना है, तो पहले मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा जहां मुझे जाना है। तो ये यहाँ पे मैं नाम लिख दिया, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट वो एक अलग पीपीटी में है, राइट? तो वो इस पीपीटी में नहीं है, वो अलग पीपीटी में है, तो आई हैव टू गो देयर। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट में दिस जूम एंड लिंक, लिंक, गो टू लिंक। अब मेरे को कौन सा डॉक्यूमेंट को लिंक करना है? वो डॉक्यूमेंट मेरा एक फोल्डर में होगा, से वो है मेरा फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, तो आई गो टू डेस्कटॉप। उस फोल्डर का नाम है रिसर्च, कोई भी फोल्डर ले सकते हो, रिसर्च। ओके, रिसर्च के अंदर मेरा वो फोल्डर का नाम है ये MS वर्ड लेक्चर। ओके, ये मैंने ओके कर दिया। यहाँ हाइपरलिंक आ गया, ये देखो हाइपरलिंक। इसको कंट्रोल के साथ हमने जस्ट क्लिक किया, वो वाला डॉक्यूमेंट खुल गया। Okay, ma'am. Now got it. Thank you. लिंक, इंसर्ट लिंक, खाली वो नाम सेलेक्ट करके इंसर्ट लिंक। प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। ओके, ओके। सम यूजेस ऑफ एक्सेल, तो ये हमें खोलना है, राइट? सो बेसिकली in the Excel, what we have to do? Certain like few functions which are very important, I will just show you. Concatenate. Concatenate का मतलब होता है दो टेक्स्ट को जोड़ना। Okay, just 1 second, just 1 second. से आपका डेटा है दो, एक स्टूडेंट, एक एक्सेल की शीट में आपके स्टूडेंट्स के नेम है और दूसरी कॉलम में आपके उनके सरनेम है। ओके, सी दिस डेटा, आई मेक इट, कैन यू पीपल सी इट? इज इट Yes, विजिबल? ma'am. एक फर्स्ट में आपका फर्स्ट नेम है, सेकंड में आपका लास्ट नेम है। अब आपको पूरा नाम एक साथ चाहिए, कैसे करोगे आप लोग? कॉपी आप लोग टाइप करोगे, राइट? टाइप नहीं करना है, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड कॉन्कैटिनेट। ओके, मैं आपको एक्चुअल एक्सेल में दिखा देती हूँ। कॉन्कैटिनेट, दैट फंक्शन विल हेल्प यू इन ओपनिंग, सॉरी, दैट फंक्शन विल हेल्प यू इन कनेक्टिंग टू टेक्स्ट, दो टेक्स्ट को वो ऐड करता है। एक्सेल क्यों नहीं, जस्ट 1 सेकंड, एक एक्सेल फाइल खोलनी पड़ेगी। एक ही खोल के रखती हूँ, उसमें सब चीज दिखा देती हूँ आपको। राम, यहाँ पे हमने डाल दिया। राइट, अब ये है, अगर हमें पूरा नाम एक में लेना है तो हम क्या करेंगे? देन वी विल स्टार्ट डूइंग कॉपी पेस्ट, या फिर यहाँ से उठाएंगे या यहाँ पे जाके नीचे टाइप करेंगे जैन, वो नहीं करना है। आपको यहाँ पे आना है, एक नए कॉलम में आना है, खाली कॉलम में, इंसर्ट, ओके, फंक्शन, सॉरी, इंसर्ट फंक्शन किधर गया? Sorry, formulas are again. I'm so sorry. Formulas में insert function. Okay, and the function is called concatenate. So आप यहाँ पे टाइप करो CONCA और गो करो, इतना ही टाइप करोगे तो भी आ जाएगा concatenate. Concatenate का मतलब connecting two things. Concatenate. तो ये concatenate ये आपने ओके करिए इसको। ओके, तो किस किस को आपको concatenate करना है? टेक्स्ट 1 को, ओके, और टेक्स्ट 2 को, राइट? ओके कर दो। 3 4 5 जितने होंगे सब आ जाएंगे। अगर आपको एक में मिस्टर मिसेस भी लिखना है तो वो भी आ जाएगा। मिस्टर, मतलब सॉरी, यहाँ पे आप डेटा एस्केप कर दीजिए, फंक्शन से बाहर आ जाइए। यहाँ पे मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर जो भी आपको लिखना है, मिस्टर, डॉक्टर, जो भी, सॉरी, यहाँ पे आपको डॉक्टर, मिस्टर, सब आ जाएगा। इन सबको भी आप 3 को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, ठीक है? अगेन गो टू इंसर्ट फंक्शन। अब आपने वो यूज कर लिया है तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, कॉन्केटिनेट टेक्स्ट 1, ओके,
x2 एंड x3, तीनों को ऐड कर देगा। ओके कर दीजिए, ये देखिए। और हाँ, अब देखो मैंने इसको जानबूझ के ऐसे किया है, इसमें स्पेस नहीं आया है। आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस भी दे सकते हो, राइट? कैसे दोगे वो बता देती हूँ। कॉन्कैटिनेट, यहाँ पे जाके टेक्स्ट वन के पास स्पेस नहीं तो वहां पे भी आप डाल सकते हो। एक मिनट, इस फंक्शन में ही वापस चले जाइए, इंसर्ट फंक्शन कॉन्कैटिनेट। यहाँ पे ना स्पेस डालना है आपको, तो यहाँ पे आप खाली रखिए, राइट? फिर आप यहाँ पे डालिए ये वाला, सॉरी दो आ रहा है, यहाँ पे आप डालिए सेकेंड वाला, और फिर आप स्पेस रखिए, एक और खुल जाएगा, वहां पे आप ये डालिए थर्ड वाला। अब देखिए आपको स्पेस आ जाएगा उसके अंदर, या आप खाली स्पेस भी डाल सकते हैं उसके बाद में। खाली सिंगल स्पेस डालेंगे तो भी स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस डाल के भी करेंगे कॉमा के बाद तो भी वो आ जाएगा। एक कॉमा, फिर यहाँ स्पेस डाला, नहीं सॉरी, दोनों कॉमा के बीच में स्पेस डाला तो वो आ जाएगा। एक कॉमा, एक और कॉमा, स्पेस, और फिर यही आप है ना उसको कॉपी कर दीजिए। क्यों गड़बड़ आ रहा है? तो सब में आ जाएगा वो। आप इसको नीचे तक कॉपी कर देंगे तो सारी लाइंस उसकी आपकी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, सब में आ जाएगा मिस्टर लक्ष्मण मिस्टर। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। अभी वर्ड फाइल पे थे, हाँ ये रही। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। ये देखिए आप नाम सारे A2 B2 करेंगे तो सब साथ में आ जाएंगे। नेक्स्ट लेंथ, ओके। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स इन द सेल। आपकी एक लाइन में कितने वर्ड्स आए अगर आपको काउंट करना है तो यू यूज लेन, और वो स्पेस डाल दो जहां पे आपको टेक्स्ट चाहिए, ऐसा करके, एंड देन लेन C2। आपको देखना है लेंथ C2 की कितनी है, तो लेन डाल के कहाँ का उसका एड्रेस दे दो। लेन करोगे इक्वल टू करोगे, len फंक्शन डालोगे, ओपन करोगे ब्रैकेट, जहां पे जाना है वहां जाओगे, क्लिक करोगे, क्लोज कर दोगे, तो वो अपने आप उसका आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। इट विल गिव यू 32 कैरेक्टर्स, 28 कैरेक्टर्स, ऐसा करके वो देगा। The number of calendar days between two dates is calculated using this function. End date क्या है, start date क्या है, days you want to count की 10th January 24 से लेके today, that is 20th April में कितने days हुए exactly. Okay, so that function can give you number of days. Okay, ये आपके लिए इतना important नहीं है. Let's do whatever is important for you. SUMIFs. SUMIF is very important function. Generally हम sum से भी काम कर लेते हैं, but अगर कहीं criteria होता है तो SUMIF करके करते हैं। सम का मतलब जितनी भी रेंजेस उनको सम करेगा। इफ का मतलब होगा जहां हमें उसमें कोई कंडीशन देना है, लाइक ओके बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, हाँ ये देखिए, इज इट द राइट, कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. एक सेकेंड, नहीं हाँ ये दूसरा आ गया ना, वही मैं देख रही थी, नॉट दिस। हाँ सी दिस वन। हाँ अब यहाँ पे अगर देखो ये सैलरी है और ये जेंडर है, आपको सारी सैलरी का सम चाहिए तो आप डायरेक्टली सम लगाओगे तो सब सैलरी का सम आ जाएगा। पर मुझे चाहिए कि उनकी सैलरी का सम हो जो जो फीमेल्स हैं, मतलब कि नंबर 4 काव्या, जिया और पिया की सैलरी का ही सम आना चाहिए। तो मैं क्या फंक्शन लगाऊंगी, सम इफ एस। हाँ किसका सम चाहिए, E2 कॉलम का। ओके E2 से E7, ये पूरा E2 से E7 तक चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए, बट किसके बेसिस पे चाहिए, तो कॉमा लगा के ये किया मैंने, G2 से G7 मेल फीमेल। और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया हमेशा कोटेशन के बीच में आता है, मेल है या फीमेल है। तो अगर फीमेल है तो ये इनका सम आ जाएगा और ये इनका सम आ जाएगा। अगर फीमेल का चाहिए तो खाली फीमेल का। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस विल ओनली काउंट द सैलरी ऑफ Kavya, Jia and Pia, that is 4, 5 and 6 number, 35,000, 70,000 and 12,000, इतना ही वो सम देगा। इट मीन सम इफ से हम क्या क्या सम कर सकते हैं, जब किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे। ओके
टेक द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स whose score is above 60, उनको ही करना है, उन्हीं के स्कोर को सम करना है। तो वो 60 वाले क्राइटेरिया पे जाएगा, जिसका स्कोर 60 से ज्यादा है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। सो यू हैव टू पुट द क्राइटेरिया। So all these functions, again, the help is given in the Excel. You can just read and do it. नहीं तो ये स्लाइड पे से भी आपको आ जाएगा। ये समझ कर लिया। एवरेज इफ, जैसे हमने सम किया है वैसे ही उन सैलरी का एवरेज इफ भी कर सकते हो, बस वहां पे सम की जगह आपको एवरेज इफ लिखना है, रेंज देना है और क्राइटेरिया डालना है। देखिए यहाँ पे एवरेज ऑफ सैलरीज अभी प्रोजेक्ट के बेसिस पे, प्रोजेक्ट 1 के बेसिस पे लिया है। जब भी नंबर होगा तो नंबर कोड के बीच में नहीं आएगा, लेकिन मेल फीमेल टेक्स्ट होगा तो वो कोटेशन के बीच में आएगा। हमें एवरेज करना है, किसका एवरेज करना है? एच कॉलम के बेसिस पे, प्रोजेक्ट के बेसिस पे, और जिन जिन का प्रोजेक्ट नंबर 1 है उनका ही एवरेज चाहिए। मतलब ये जिया, पिया और दिव्यांश थी, लास्ट 3 वाले का एवरेज हमको करके रिजल्ट दे देगा। इट विल गिव अस अ रिजल्ट। और नॉर्मल एवरेज करना है तो यहाँ पे ही आप जाके इक्वल टू एवरेज लिखोगे तो ये इस पूरे कॉलम का एवरेज दे देगा। एवरेज और एवरेज इफ, सो इट मींस देयर आर 2 डिफरेंट फंक्शंस। एक डायरेक्ट एवरेज देगा और एक आपको जो आपको कुछ क्राइटेरिया लगा के एवरेज करना है वो आपको दे देगा। So I will share this document with you. Same thing it can do with count if. Count if का मतलब आपकी उसमें आपको किसी की काउंटिंग करनी है। Say for example, if you write yes no for something and you have to count how many yes is there. I'll just show it to you one time. एक आध फंक्शन में दिखा देती हूँ आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay. यहाँ पे हमने लिख दिया यस यस, नो नो, यस यस। ओके, और यहाँ पे हमने कुछ नंबर डाल दिए हैं 10, सॉरी कहाँ चले गए? यहाँ पे हमने कुछ नंबर डाल दिए हैं 10, ओ सॉरी नंबर ऑफ ऑन है नहीं, इसलिए 10 12 15 18 19 14। ठीक है, अब हमें जैसे मैंने बताया था, आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? अगर आपको सिंपल सम करना है तो ये सम हो गया आपको, राइट? यहाँ पे आप लिखोगे तो सम आ जाएगा इनका, दिस इज अ सम टोटल। वो सिर्फ सम करके ये वाला सिंबल दबा दोगे तो भी आ जाएगा, राइट? अब मुझे सम किसका करना है? जो मेरे नो है उनका सम करना है, विच इज लाइक हाउ टू इंसर्ट द फंक्शन। एक तो यहाँ से जा सकते हो आप फॉर्मूला से। हेलो, अभी दिख रहा है? इंसर्ट फंक्शन में जाओ, सम इफ्स करो, वो करो, ये आपका सम इफ्स आ जाएगा। और आपको याद हो तो आप खुद भी लिख सकते हो सम इफ्स आपको करना है इस रेंज का, राइट? बट आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है? यस या नो, राइट? इस रेंज के बेसिस पे आपको सम करना है। और आपका क्राइटेरिया क्या है? मैं सिर्फ नो का सम करना चाहती हूँ, ओके? तो माय क्राइटेरिया इज नो, राइट? बट नो टेक्स्ट है इसलिए मैं उसको कोट में डालूंगी। ओके ओके, 30। इट मीन्स बेटा 15 और 15 का सम आया है 30। आर यू गेटिंग इट? इसी का मुझे अगर एवरेज करना है तो मैं सम की जगह एवरेज डाल दूंगी तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज एवरेज, राइट? तो ये मेरे को इसका, सॉरी कुछ कर पर है एवरेज, अच्छा पूरा नहीं आया है, एवरेज हाँ ये आ गया एवरेज। ओके, अब ये आ गया 15 का एवरेज आ गया 15, सम आ गया था 30। अब मुझे काउंट इफ करना है तो अगेन आई कैन डू काउंट इफ। काउंट किया, काउंट इफ्स, व्हाट आई हैव टू काउंट? यूज दिस, सॉरी काउंट कंसर्न इंसर्ट फंक्शन, काउंट में जाएंगे UN
काउंट इफ, या काउंट भी लगाओगे क्योंकि यस और नो ही करना है तो काउंट भी कर देगा वो। गो काउंट, क्या काउंट करना है? वैल्यू यस, सॉरी रेंज नहीं दिया ना, एक मिनट, हमने रेंज नहीं दिया, सॉरी, वेट, इक्वल टू काउंट इफ्स कर लेते हैं, काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज देना है, क्राइटेरिया इज यस, हमारा क्राइटेरिया इज यस, कॉमा लगा के हमको रेंज देना है, कहाँ पे काउंट करना है ये। ओके, क्लोज कर दो ब्रैकेट को, कर दो, ये क्या हो गया? वेट जस्ट 1 सेकेंड, insert function, we will follow suit from counters, criteria range is yes, criteria is 1, why it is not okay? I don't have to put the quotation here or what? शायद इसमें quotation नहीं लगाया है, yes लगाया, criteria डाला, okay. F8 to F13 only we are doing now. What happened? Wait, I think I put the correct formula only. Wait just 1 second. अच्छा, पहले रेंज और फिर क्राइटेरिया आएगा, हाँ वैसे करना बेटर है। ओके, सेम वी विल यूज द सेम मेथड व्हाट वी डिड फॉर दैट। पहले रेंज देंगे, यहाँ से जाके आप रेंज दे दो, काउंटिफ, ओके, रेंज, एंड देन द क्राइटेरिया इज यस 4, सी वो सेम फॉर्मूला जो हमने सम एवरेज के लगाया था, दैट इज द राइट फॉर्मूला। काउंट इफ, एवरेज, सम, मीन, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम दैट फॉर्मूला। So 4 years are there. So अगर बड़ी टेबल है, it is easy for you to count how many females, how many males. Or you know, once Excel में एक चीज कर लिया, अगर आपको पूरी शीट के लिए चाहिए, you can always copy paste and do that. हाँ, count A will count the empty cell. पूरी रेंज में कितनी empty cells हैं, that will count for you. Okay. VLOOKUP and HLOOKUP, that is vertical lookup and horizontal lookup, will look for the same values. अगर एक से हमारे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है 500 एंड वी वांट टू सी कि नेम रिचा इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिचा, तो हाउ विल यू डू दैट? वन इज यू पुट अ फिल्टर, ओके, अनदर वे इज यूज अ फॉर्मूला कॉल्ड वी लुकअप। तो क्या वैल्यू क्या देखना है? नेम इज रिचा, टेबल कहाँ पे देखना है? पूरी टेबल में देखना है, कॉलम में देखना है, और कॉलम का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सो दैट विल गिव यू हाउ टू सी दिस। This is a VLOOKUP formula. Here, A3 is customer ID. Okay, that is what we want to look up. कितने लोगों का customer ID, मतलब प्रोडक्ट 1 A3 कॉलम में हमको देखना है, इस कॉलम में वो देखेंगे, फिर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। रेंज G2 से लेके पूरी टेबल में ढूंढना है उसको। ओके, 2 and 0, how many are having 2 and 0 as the vintage, this value 2 and 0 कितने में आ रहा है, तो वो सारी वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। VLOOKUP will get the values for you, 2 and 0 का सारा वैल्यू। एज, दैट इज कॉल्ड द एज, कितना, सॉरी 20 है, नहीं 20 ही आ रहा है, हाँ, इट विल लुक फॉर द एज, हाँ कितने लोगों का एज 20 है, दैट इट विल लुक फॉर। सेम यू कैन डू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल विल लुक इन द रोज and vertical will look in the columns. That is how VLOOKUP is. VLOOKUP is very useful when you are doing lot of big data. अभी जब आप लोग, see where will you use it? I'm talking about use, but where will you use it? When you have your this one thing also I will teach you how to do a Google form. When you are collecting the data, how will you collect the data? Tell me. Anybody can tell me how to collect the data? How will you collect data from people? From primary and हाँ ठीक है, आपने अपना सैंपल साइज लिखा है, पीएचडी में आपने लिखा है 500 लोगों से आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो 500 लोगों से डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? तो क्वेश्चन है, वो 500 लोगों के पास क्वेश्चन है लेके जाओगे? गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, बेस्ट, गूगल फॉर्म। ओके,
गूगल फॉर्म आप भरोगे, गूगल फॉर्म इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अ एक्सेल शीट, राइट? आप जो गूगल फॉर्म बनाते हो ना, तो उसका जो डेटा कलेक्ट कहाँ होता है? एक्सेल शीट में कलेक्ट होता है। ओके, अब आपकी एक्सेल शीट में 500 स्टूडेंट्स का डेटा है, सीरियल नंबर आ जाएगा, उनके नेम्स, आपने जो जो भी फील्ड गूगल फॉर्म में दिया है वो सारा डेटा उसमें आ जाएगा। ओके, अब आपको देखना है कि कुछ लोगों ने एम्प्टी क्वेश्चंस भी रख दिए हैं, तो आपको वो ढूंढना है। तो आप वो काउंट ए के फॉर्मूला से आप ढूंढ लोगे कितनी सेल्स एम्प्टी है, वो सारा डेटा आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ द डेटा। ओके, क्योंकि आप एम्प्टी डेटा यूज नहीं कर सकते। आपकी गूगल शीट में अगर 50 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो आपको सारे के आंसर्स फिल होने चाहिए, अदरवाइज इन योर फाइनल फाइंडिंग्स यू विल नॉट यूज द इनकम्प्लीट डेटा। ओके, जिसने आपको इनकम्प्लीट डेटा दिया है वो आप नहीं यूज कर सकते। अदरवाइज व्हाइल मेकिंग अ गूगल फॉर्म, मेक अ कंडीशन कि दे हैव टू आंसर, अदरवाइज दे कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट फॉर्म, दे कैन नॉट सबमिट द फॉर्म, राइट? नहीं तो आपके कई लोग आधा आधा फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे, तो आपका इनकम्प्लीट डेटा होगा, एंड इनकम्प्लीट डेटा कैन नॉट बी यूज्ड इन रिसर्च, यू हैव टू यूज द कंप्लीट डेटा। तो ऐसी रोज को आपको निकालना है, तो वी लुकअप से निकाल सकते हैं। वी लुकअप में जहां पे ब्लैंक सेल्स हैं, ब्लैंक सेल्स के लिए दो कोटेशन के बीच में स्पेस दो, कोट स्पेस कोट, तो ब्लैंक सेल्स को फाइंड आउट करेगा। तो वो ब्लैंक सेल्स वाला आप सारा निकाल दो डेटा, वो सारा डेटा आपका एक साथ निकल जाएगा, एक ही बार में आपको पता चलेगा कि 20 सेल्स में खाली है, तो ये 20 डेटा मैं यूज नहीं कर सकती। नाउ माय सैंपल इज ओनली 480। ओके, सो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल में आ गया, आपकी टेबल बन गई। अब उस टेबल पे आपको जो भी करना है, कितने में पिवट से आपको नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स लगाना है, आपको डेटा का क्लब करना है, हर क्वेश्चन के आंसर यस नो, कितने यस आ रहे हैं कितने नो आ रहे हैं, उसकी टेबल बनानी है। एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल का बेस्ट पार्ट यही है कि इट कैन क्लब योर डेटा इनटू टेबल्स एंड रेंजेस, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो गूगल फॉर्म से यू डायरेक्टली गो इनटू द एक्सेल। गूगल फॉर्म का कनेक्शन आपका एक्सेल पे होता है, उसका डेटा सारा एक्सेल में कनेक्ट होता है, तो वो डेटा आपको, दैट इज द कोलैबोरेशन ऑफ एक्सेल। तो वो सारा का सारा आपको डेटा एग्जैक्टली जहां चाहिए वहां मिल जाता है। देन यू हैव टू ओनली run the data, and then you have to do the charts and bar to make it visualized. I'll show you just few examples of charts and graphs. See, all these are important functions of Excel that you have to use. Range and table, data cleaning, as I was telling you, कौन सा काम का है कौन सा नहीं काम का है निकालना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जैसे अभी हमने किया काउंट इफ लगा के, सम इफ लगा के, वो सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, सॉर्ट करके डेटा को अरेंज करना है, नेम वाइज, सरनेम वाइज, एज वाइज, इनकम वाइज, जैसे भी आप उसको सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हो, सब टोटल्स कर सकते हो, क्विक एनालिसिस कर सकते हो यूजिंग ग्राफ्स, मीन, मोड, मीडियन, स्टैटिस्टिकल टूल। लुकअप फंक्शन से आप कुछ चीज ढूंढ सकते हो। पिवट टेबल्स, जैसे मैंने बोला समरी बना सकते हो, मल्टी लेवल पिवट टेबल्स बन जाएगी आपको। कितनों के कितनों की एज इज बिटवीन 10 to 40, कितनों की एज इज बिटवीन 41 to 60, वैसी टेबल्स बन जाएंगी पिवट से आपको, और फिर आपको उसको एक्सेल पे विजुअलाइज करवाना है। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स। डेटा क्लीनिंग, क्लीन कैसे करना है डेटा को, देन मेन इज द विजुअलाइजेशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, एवरीथिंग इज गिवन इन द शीट। मैं आपको ये शीट शेयर कर दूंगी, प्लीज गो थ्रू इट। हाँ, ये देखिए, ये एक समरी है जिसका पिवट कैसे बनता है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये आपका है, कुछ व्हीकल्स के नाम है यहाँ पे। ओके, उनकी एमपीजी, उनका सिलेंडर्स, उसमें क्या 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 उनके स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ये कार्स हैं। ओके, अब आपका इसको पिवट बनाना है, तो पिवट बना के इसका रिजल्ट यहाँ पे दिया है क्या? हाँ, दिस इज अ पिवट। ओके, अब ये देखो, ये टेबल आ गई आपकी, कितने हॉर्स पावर के हिसाब से, कितना कंट्री के हिसाब से, एवरीथिंग सबका टोटल वो पिवट में एज अ समरी, इट कम्स लाइक अ समरी। यहाँ पे ये आपकी लेबल्स, कार के नाम है उनके, यूरोप में कौन कौन सी कार यूरोप में है, कौन सी जापान में। आपने उसको कंट्री वाइज एनालाइज कर लिया। पहले आपका डेटा कंट्री वाइज नहीं था, देखो आप, पहले आपका डेटा वाज नॉट कंट्री वाइज, कंट्री यहाँ पे दी है लास्ट। ओके, अभी आपने कंट्री वाइज कर लिया कि कितना यूएस में कितनी कौन कौन सी कार है, जापान में कौन कौन सी कार है। ऐसे आप सिलेंडर वाइज करना चाहते हो, वेट वाइज करना चाहते हो, एक्सेलरेशन वाइज करना चाहते हो, तो आपके अलग अलग आप पिवट टेबल्स बना सकते हो, कौन सी टेबल आपको चाहिए। देयर इज अ वेरी सिंपल फंक्शन कॉल्ड एज पिवट फंक्शन। आई शो यू।
मैं करके नहीं दिखा पाऊंगी आपको। इंसर्ट पिवट टेबल, दिस विल समराइज आपके इस टेबल को, ये वाली टेबल है हमारी, उसको न्यू वर्कशीट में नहीं, हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इसको समराइज कर देते हैं। ओके, न्यू में करें, ओके, न्यू वर्कशीट में वो समराइज कर देगा आपका डेटा। आपको कैसे चाहिए, यस नो के हिसाब से डेटा चाहिए ना, तो आप ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। यस, ये तो बहुत छोटा डेटा है तो ढंग से नहीं आएगा, पर ये आपको आ जाएगा कितने यस हैं कितने नो हैं। ये आपकी यहाँ पे रो के लेबल्स वगैरह आप बाद में डाल सकते हो, ग्रैंड टोटल डाल सकते हो, कितने आंसर नो हैं कितने यस हैं वो उसकी टोटल करके आपको दे देगा। दैट्स अ समरी, इट्स अ काइंड ऑफ अ समरी, इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टूल। आपका बहुत टाइम सेव करेगा ये टूल। दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा सब। कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन इजीली गेट इट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वहां पे जाते हैं। एनालिसिस, so okay, they have not. Okay, so how many types you can do? We have like column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, scatter plot, जैसे भी चाहिए आपको एक्सेल को डेटा को दिखाने के लिए, you can always use charts and graphs. I'll just show it to you. मेरी एक्सेल कहाँ गई है? शीट 1, ये है टेबल मेरी। सेलेक्ट द टेबल, इंसर्ट, ओके, यहाँ से आपको चार्ट, रिकमेंडेड चार्ट चाहिए, आपको बार ग्राफ बनाना है, आपको जो बनाना है आप खुद चूज कर लीजिए, ये आपका चार्ट बन जाएगा। आपको कैसा चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, यूजर लाइन चार्ट, ये आपका लाइन चार्ट बन गया इस डेटा के ऊपर। ओके, अगर आपको खाली यस नो पे बनाना है आप यस नो पे बनाओ, आपको खाली नाम उस पे बनाना है तो ये कॉलम को हाइड करके आप किसका सैलरी कैसे कितना है उसके हिसाब से बनाना है, तो आप ये वाला कॉलम डिलीट कर दो। ओके, एंड इसको यहाँ कॉपी कर दो, जो जो चाहिए जितना चाहिए उतना ही चार्ट में रखना है। अब देखो आपका ये चार्ट बनेगा इन दोनों के हिसाब से, राइट। अब वापस हम री बनाना री करना डू करना पड़ेगा आपको, इंसर्ट बार चार्ट, लाइन चार्ट कोई सा भी ले सकते हो। ओके, ये देखो एसजी का सैलरी 10 है, इसका ये, इसके ऊपर आप लाइन डालना चाहते हो तो वो लाइन भी आ जाएगी। दिस इज ऑल योर चार्ट, वेरी इजी टूल। और इसको आप सेव करके कंट्रोल सी कॉपी करके यू कैन टेक इट इन द वर्ड फाइल ऑल्सो। इसको वर्ड में भी दिखा सकते हो क्योंकि आपको अपना डेटा वर्ड में ही शो करना पड़ेगा एज अ रिपोर्ट। तो ये चार्ट को आप कॉपी करके वर्ड में लेके जाओ, वो आपका कॉपी रहेगा वहां पे, कुछ नहीं हुआ। और कॉपी करने का तरीका है कंट्रोल सी कॉपी, जाके पेस्ट स्पेशल कर दो तो वो चार्ट एज सच रहेगा, उसके नंबर्स चेंज नहीं होगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेल। एक और मैं सिंपल फीचर है विच यू विल यूज इन दिस, दिखा देती हूँ। जब आपको डेटा को टेक्स्ट में टेक्स्ट से इसको लाना है, अभी मैंने अपना डेटा को ऐसे टाइप किया है, आई वॉन्ट कि मेरा डेटा ये सारा रो में रो की आ जाए। पहले मैंने सोचा मैं टेबल ऐसे बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा मैं टेबल ऐसे बनाऊंगी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके पेस्ट ट्रांसपोज सी, द होल डेटा इज कम हियर। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो मेरा डेटा रो की जगह कॉलम में आ गया। पेस्ट ट्रांसपोज, पेस्ट स्पेशल होता है वहां जाके पेस्ट ट्रांसपोज कर दो आप, तो सारा डेटा रो का डेटा आप कॉलम में डाल सकते हो, कॉलम का डेटा आप वापस रो में चाहिए आपको, अगेन सिंपल कंट्रोल सी। ये बहुत सिंपल फंक्शन है बट इट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू मेक टेबल्स। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, इट विल कम हियर एंड देन यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर इफ यू डोंट। हमने टाइप कर लिया, नहीं तो हमको रीटाइप करना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू रीटाइप, वी हैव टू ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। ओके, any questions here? Then we can go to other PowerPoint. No, madam, no question. No questions. So let's go to PowerPoint. Use of PowerPoint in research.
PowerPoint is not directly used in your research unless and until you want to show a part. But yes, ultimately you have to present your research. So when you have to present your research, you need to show it in a better way. What better than PowerPoint? आजकल सिर्फ हम PowerPoint नहीं use करते. There are PowerPoint is a MS software. We use Google Slides. As I told you, Google जैसे हमने Google Doc, Google Excel देखा है, वैसे ही we use Google Slides. There is something called as a software called as Prezi. There is a software called as Canva. In सब में भी free PowerPoint tools available हैं. You can use charts in that. Canva and Prezi are more dynamic than PowerPoint. So you have a better representation of the data. There you can use Prezi, you can use Prezi, Prezi, Canva, Canva, Canva. उनमें भी अपने charts, presentations बना सकते हो. Actually, we use those charts and presentations. Okay, what are the advantages? सबसे important, it allows for visual communication. Visual communication any day is far, far, far better than your textual communication. Pictures will speak more than your words. So PowerPoint enables presenter to communicate key points in a visual format through text, images, videos, and animation. You can incorporate graphics, videos, animation. आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाते दिखाते कुछ छोटा क्लिपिंग वीडियो दिखाना है, कुछ एनिमेशन दिखाना है, तो यू कैन ऑलवेज एड इट इनटू पावरपॉइंट. जैसे मैंने बताया था, हाइपरलिंक बनाओगे, बाहर नहीं जाना है, आपको वहीं जाना है. यहाँ पे भी लिंक वैसे ही बनेगा. इंसर्ट से लिंक जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे तो वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगा. सो आई टॉट यू हाउ टू मेक अ हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक बना के आप करोगे. स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन क्लियरली, वो एक फॉर्मेट में उसको, एक इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में डाल देता है. So it is an effective tool because of its visual nature. Okay. Challenges. It can oversimplify complex ideas. So is it good or is it bad? When you're presenting your data in a PowerPoint का मतलब ये होता है bullets. Points has power. Okay. So you have to represent your idea into points. But when you're representing your ideas into points, you may have to, forgo or forget some important information which can be better represented in text. So that's a challenge. So that's why I said it's not easy to make PPT. PPTs require a lot of thought process. You have to plan it very well. Okay. Heavy reliance on slides reduces your spontaneity. जो आप organic discussion होता है audience के साथ, वो कम हो जाता है because you're relying on, see, right now I also follow a particular concept. So your discussion is not there. So when you have a discussion, keep it as a discussion. When you have a slides, keep it as a slide. Technical glitches, yes, there can be sometime technical glitches and you can have problem in the flow. Tips of effective use: limit your text. Focus on 3 to 5 key points per slide. But you cannot have 80, 90 slides. You have to keep your slides limited. For a research proposal, for a PhD synopsis, it will be 35, 40 slides. But a research paper, it has to be 10 to 15 slides, 15 to 20 maximum. Use graphics properly, purposefully. Don't use overuse of graphics is also not good. And less use of graphic is not good. So use the correct figures and with the correct data. Practice presentation timings and flow. You have to time out. कितनी देर में कितना होना चाहिए. Otherwise, you will go out and the things will not be able to, you will not be able to cover the time. So again, you can divide your presentation into 3 parts and divide, if you have 15 minutes, 5 minutes for each part. So 3 parts can be presented in 15 minutes. Generally, मैंने देखा है conferences what they do. कोई बोलना शुरू करता है, उसको बोलते जल्दी करो 5 मिनट में खत्म करो. So you should know how to present in 5 minutes and 7 minutes, which exactly to show and which not to show. That is your whole idea. Okay, so this is how you have to do. And see, मैंने यहाँ पे भी वापस ये डाला है. I have to show you a research synopsis. So I will click here. So it will go, sorry. I will click on research synopsis. It will go to research synopsis. Click कर. अच्छा मैंने attach नहीं किया था, लिख के रखा है. Okay, I will add here. I will show you how to add. Insert again, link. Okay. And this is my research synopsis. So I will add it here. Okay.
Now if I click with control, it should open, right? So this is how I showed you the PowerPoint slides कैसे बनाना है, कितना minimum effective वो होना चाहिए. Okay, any questions here now? Now the house is open for the questions. Anything that you want to ask, please ask. Or everybody sleeping? Lunchtime? No, ma'am. No, no. Okay, I thought everybody had their lunch and slept. Okay, any questions you can ask me. I will share all my slides. I'll all the work with the madam so she can share it with you people. Yeah, Thank ma'am, you, ma'am. it's beneficial for. हाँ, that will really help you. तो और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. थैंक यू वेरी मच मैडम, और काफी अच्छा लेक्चर रहा है आपका, बहुत बढ़िया समझाया है आपने. थैंक यू वेरी मच मैडम. Thank you. And thankfully, you were a good audience. Last time I remember I took a session with then it was a webinar, COVID के time पे ना, तो then I was only speaking. There was no interaction. आज people were there good enough, तो they were answering. They had some questions. आपको अपनी PhD के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. I know you all have a guide. हाँ. एक्चुअली मैडम, जो गूगल फॉर्म ने कुछ क्वेश्चन मैंने भेजे इंडस्ट्री में अभी, हाँ. तो उसमें से मैडम सिर्फ लगभग अभी 50 लोगों ने ही मतलब भर के भेजा है, तो बाकी एम्प्लॉयज ऐसे भर के दे नहीं रहे, तो उसके लिए रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं अभी? That's a very very practical questions. इस पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई आंसर नहीं दे पाऊंगे बिकॉज अगर कंपनी का डेटा है तो हम वैसे भी रैंडमली भी नहीं भर सकते हैं, राइट? हाँ जी मैडम. तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए, एक दो लोगों को कोई जान पहचान निकालिए, उनको बोलिए वो करेंगे, थोड़ा सा लॉबिंग विल बी इम्पोर्टेंट. आप एक दो लोगों से बात कीजिए, नहीं तो देन यू हैव टू इन्फ्लेट द डेटा. दैट इज द ओनली सोर्स. अगर 80 आया है तो उसको डबल करके 160 दिखाना पड़ेगा. अच्छा अच्छा. Because there is minimum requirement. That's a very very practical problem. Everybody face that problem. So then there is a manipulation of data that we have to do. There is no other source. आपने कितना सैंपल रखा है? 386 है मैडम. 386 रखा है और अभी 50 आया है. इंडस्ट्री यस मैम. Okay. So then you'll have to little pursue with people. At least मतलब around 200 आ जाएगा तो उसको थोड़ा manipulate कर सकते हो आप. जी मैडम, जी मैडम. Otherwise, there is no practical approach. It's only you'll have to pursue people. The best way is आपका कोई friend हो उसको बोल तू 10 भरवा कर दे, तू 10 भरवा के दे. Approach this group only. I think the best part here that we should learn today is make a WhatsApp group out of this particular. होगा भी शायद आपका WhatsApp group. जी हाँ मैडम है. Learn to help each other in this group. अपना अपना रिसर्च पेपर आप दूसरों को भेज सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, भरवा सकते हो. उनको बोलो जो अपनी हेल्प कर सकते हैं. किसी की फैमिली मेंबर होगा, किसी इंडस्ट्री में किसी का फ्रेंड होगा, किसी का रिलेटिव होगा, तो वो कोई ना कोई हेल्प कर सकता है. जी This मैडम. is how you have to do. Research is all about collaboration. So you have to collaborate for data. Otherwise, data collection is a very difficult thing. Another thing that you can do. आपका क्या टॉपिक है मुझे बताइए. टॉपिक क्या है? हेलो हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. वो सर जो मैडम, हाउस का मैडम. टॉपिक क्या था, वो सर जो बोल रहे थे. हाँ. An analysis of the impact of technology on human resource practices in manufacturing units in Aurangabad region. ओके. तो ये तो आपका डेटा ऐसा. मैंने सोचा कि अगर कुछ सेकेंडरी डेटा होता है तो देन यू हैव सम डेटाबेसेस ना, वहां से भी आप ले सकते हो. सम अनपेड डेटाबेसेस भी होते हैं वो. बट इसके लिए आपको या तो कुछ सेकेंडरी सोर्सेज देखिए जहां पे आपको डेटा कुछ पुरानी रिसर्च वगैरह में मिल जाए, एंड यू कैन कोड दैट रिसर्च एंड टेक दैट डेटा इफ यू डोंट गेट इट. अदरवाइज नेटवर्किंग इज द ओनली सोल्यूशन. ओके मैम. लोगों से बात कीजिए, लोगों से डेटा शेयर करवाइए और उनसे बोलिए करने के लिए. दैट इज द जी ओनली मैडम. सोल्यूशन. जी मैडम. जी मैडम. थैंक यू मैडम. Ma'am. Hello. हेलो, सॉरी,
I Yes, got ma'am. disconnected ना. हाँ, या मैम हाँ. बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था. Ma'am, if possible, can you please share both the session PPT? हाँ हाँ, I will definitely share. आज दिन तक मैं भेज दूंगी मैम के पास, तो मैम will share with you. Because it is very informative information for us. हाँ हाँ, definitely this is for you only. I prepared it for you, so I will share it with you. Thank you, ma'am. Okay. Okay. All the best to you people. Anybody, any question? Thank you, hello, Dr. ma'am. Richa, for your wonderful session. It was Thank you. Thank you, sir. it was really nice that you have been explained with fruitful results. Really, thank you so much from the bottom of our heart Thank and you, the all entire of you. team of Thanks, the all of you. Dr. Baba Saheb Marathwada University, please. Thank you. Yeah, sure. Thank you, Thank you. ma'am. हाँ. Hello. Yes. Hello. Ma'am, Yes, if sir. any file or any information regarding Excel, I will share जो that आप document. I share will कर share सकते that हो. document with the links. I Okay, will ma'am. share that. Okay. And Word also. हाँ. And the best Oh. thing, see, all documents said and done are good enough, but best is practice. Whenever even you have small time, little time with you, make your own tables. Try and do things. अगर ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, वो होगा तो कैसे करेंगे. And I tell you, Word and Excel are the software which will give you solution for things beyond you can think of. Okay, ma'am. Okay. So Okay. please practice. जितना होगा ना, मतलब even office, मतलब अपना college का data, office का data, play with that. Practice. Yeah. Yes, Play ma'am. with this, Yes. practice. That is Yes, very ma'am. important. Make charts, make graph, how to analyze, what Yes. if analysis, all those things you can do here. Okay. And okay, good luck. All the best to all of you. I think some madam had some question. Hello. Okay. Then bye-bye. Hello. Radhika, ma'am. मॅम मीटिंग मध्ये लाड मॅम आता नेक्स्ट सेशन आफ्टरनूनला होईल तेव्हा सर्वांनी जॉईन करा. Okay, ma'am. Thank you. सेशन संपलंय. थँक्यू. Thank you.